हाँ जी क्लास, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वाला हो गया हम लोगों का, बिकॉज कलेक्टर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी। पार्ट नंबर 2, व्हेन एन इनपुट सिग्नल is applied, write down when input when an input signal, या लिख लो a small value AC voltage, a small value AC voltage is applied to the input circuit, that is emitter base circuit, comma the forward biasing, लेफ्ट की तरफ जब EB जंक्शन था तो EB जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग। Forward biasing in EB junction varies with the time, which in turn varies इधर की चीज पे राइट हैंड साइड की करंट मीन्स IC का करंट मीन्स कलेक्टर करंट या आउटपुट करंट वेरी करता है, varies with time, which in turn varies IC, and so the output voltage, this one, ये नोट डाउन कर लो,
output voltage VO, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VCC जो मेन बैटरी है माइनस IC करंट कलेक्टर का और RL जो उसकी तरफ लगा है. And so the output voltage this undergo change and thus a variable output is obtained and thus a variable output is obtained. Next, number 3. For positive half signal, मतलब ये चीज दे रहे हैं हम उसको, ये पॉजिटिव दिस वन, क्योंकि जो इधर वाला आ गया ये तो नेगेटिव हो गया. ये चीज, ये हम लोगों ने इसकी बात अभी नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, दिस वन. When positive half of the signal enters the forward bias across emitter base junction increases with increase in the value of input signal. So this increases emitter current IE and so the collector current. Thus potential across या potential drop across RL increases अब RL क्या है, means ICRL, ये it increases and the output voltage this one decreases, that is becomes less negative. Which means output voltage increases. ये इनपुट था, this one, और ये हमारी आउटपुट है. Voltage increases. Input and output pulse for positive half of the input is this one
and are in same phase, सेम फेसिंग में होंगे। अगर इनपुट ये है तो आउटपुट भी यही आएगी, सेम फेसिंग में। नेक्स्ट, number 4, for the negative half of the signal. For the negative half of the signal, when negative half enters in the input circuit, ये है input, ये है output. The negative half enters in the input circuit, the forward biasing decrease with which decreases IE and IC, which decreases IE and IC. The potential drop, फिर से same, the potential drop across RL means ICRL. The potential drop across RL decreases and the output voltage फिर से वही same, VO equal to VCC minus ICRL. Output voltage, this one, increases in the negative value or decreases in the positive value. Bracket में लिख लो or decreases in the positive value. Next, look here. When the value of input signal increases, when the value of input signal increases from minimum to zero, the forward bias increases again to the initial value. Again to the initial value. And so IE and IC, emitter का करंट और कलेक्टर का करंट, increases. Hence, the output voltage decreases in negative value. नेगेटिव में वो डिक्रीज करेगी, पॉजिटिव में वो इंक्रीज करेगी. The input and output pulse, this one, for the negative half
for the negative half, this one, ये वहां पे draw करके, are in same case. Therefore, input and output pulses for the negative half of the signal are in same phase. Okay, जो थर्ड वाला पॉइंट हम लोगों ने लिखा, जहां पर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि लास्ट लाइन बिल्कुल कि इनपुट एंड आउटपुट पल्स फॉर पॉजिटिव हाफ ऑफ द, लिखा ना यहाँ पे, आर इन सेम फेस, उसके ऊपर एक लाइन ऐड करो, उसके ऊपर एक लाइन ऐड करो। थर्ड पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट जहां पर हम लोगों ने लिखा है इनपुट एंड आउटपुट पल्स फॉर पॉजिटिव हाफ, लास्ट लाइन के ऊपर ऐड अप करो। व्हेन इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस, व्हेन इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस मैक्सिमम टू 0, मैक्सिमम टू 0, कॉमा VEB, मतलब कि एमिटर बेस का जो वोल्टेज है VEB डिक्रीजेस, VEB decreases to the initial value. So same IE and IC, so IE and IC comes back to the initial value, comes back to the initial value, and the output voltage again increases in the negative value, or decreases in the positive value. Decreases in the positive value. ठीक है जी, ओके। ये हम लोगों का फुल क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जिसमें हम लोगों ने 4 चीजों को एक्सप्लेन किया। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जसविंदर सर लेक्चर चल रहा है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। पहला पॉइंट था जब हम लोग कोई भी इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, सॉरी जब हम लोग इनपुट सिग्नल नहीं दे रहे तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू है कांस्टेंट रहेगी, एक टाइम पे वो कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा। अब हम लोग बात कर रहे थे कॉमन बेस की, बेस तो कॉमन लग ही चुका है, ठीक है। जब इनपुट की बात आ रही है और आउटपुट की, तो इनपुट है E और जो आउटपुट है वो C, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इन दोनों के करंट को वेरी कर रहे हैं कि इधर वाला जो करंट है, जो आउटपुट का करंट है, वो किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन एन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड, जब अप्लाई हो रहा है तब मतलब कि उसमें वेरिएशंस होंगी। अगर मैं IE में कोई भी वेरिएशंस कर रही हूँ तो IC में ऑब्वियसली वेरिएशंस होंगी। उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज VO VCC माइनस IC RL, ये सब कुछ उधर की चीजें हैं आउटपुट की तरफ, तो उसमें चेंजेस आएंगी। थर्ड में उसने बोला कि अगर हम पॉजिटिव हाफ की बात करते हैं कॉमन बेस में, तो अगर पॉजिटिव, नेगेटिव वाला तो आना ही नहीं, अभी सिर्फ पॉजिटिव हाफ की बात हो रही है, दिस वन, ठीक है। तो उसी का ही सिग्नल सेम फेस में वो इंक्रीज कर देगा। जब कॉमन एमिटर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, जब नेक्स्ट में हम लोग कॉमन एमिटर करेंगे तो उसमें उल्टा हो जाना, उसमें सेम फेस नहीं आएगा, उसमें वो रोटेट कर जाएगा, क्योंकि कॉमन एमिटर में क्या है, एमिटर को हम लोग ग्राउंड लगा रहे हैं, बेस इधर चला गया, तो इसका जो फेसिंग है वो भी डिफरेंट हो जाती है, बेस में सीधी सीधी आ रही है। फोर्थ, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, सॉरी अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव दिस वन, ये चीज बात हो रही नीचे वाला हाफ,
ठीक है, और आउटपुट क्या आ रही है, उसी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया सेम फेस में। मान लो अभी पीटीआर मेरा इसको पॉइंट कर दिस वन, हाँ जी, क्लियर हुआ। जस्ट टेल मी व्हाट इज द एम्पलीफायर के केस Yes, में क्या ma'am. करना है हम लोगों ने, इक्वल टू Yes, ठीक है yes. जी, ओके। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, इसके अंडर आती हैं, वो हम लोग बाद में करते हैं। ठीक है, फर्स्टली मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल किट, एक्चुअली कल हमारे पास नहीं होगी तो मैं आपको वो किट का थोड़ा सा दिखा दूँ। मैंने आप लोगों को कॉमन बेस का मटेरियल या उसकी रीडिंग्स भेजी है। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की भेज चुके हैं मैं रीडिंग्स। ये भी यस मैम कौन बोला? मेरे अकॉर्डिंग मैंने नहीं भेजी। मतलब एक भी जाना ऐसा नहीं है कि माइक ऑन करके बोल सके। टीचर दो दो लेक्चर्स में, तीन तीन लेक्चर्स में अपनी एनर्जी वेस्ट करे, आप ना कुछ बोल लो। रिया, यस मैम। हाँ जी बच्ची, यस मैम। हम लोगों का जो सीबी था ट्रांजिस्टर का, यस मैम। वो मैं आपको मटेरियल भेज चुकी हूँ। आई थिंक मैम आपने नहीं भेजा हुआ अभी। नहीं भेजा हुआ, ठीक है। ये वाली जो किट करवाई थी मैंने पिछली बार, उसका मटेरियल नहीं है ना आप लोगों के पास, उसकी रीडिंग्स वगैरह नहीं नो है? मैम, नो मैम। ठीक है जी। बच्चे एक चीज और, आप लोगों की फाइल का जो मैं मटेरियल भेज रही हूँ, मेरा काम खत्म है। मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करा दिया, मैंने आप लोगों को मटेरियल भी भेज दिया, मैं थ्योरी भी करवाई जा रही हूँ। मेरे पास जितने बच्चों की असाइनमेंट नहीं आई है, मैं अभी एक बार आप लोगों को देख के बता दूंगी कि किसकी किसकी असाइनमेंट नहीं आई है। आप लोग फ्री के 10 नंबर गवा रहे हो, फ्री के। और दूसरी बात, अपनी जो यहाँ से आपकी जो इंटरनल जानी है उसको खराब कर रहे हो। जितना ज्यादा आप लोग लेट काम करी जाओगे, नंबर रह जाने गिनती के 3 या 4, उतनी ही टीचर के सामने आपकी इमेज खराब हो रही है। उसी हिसाब से हम लोगों ने इंटरनल भेजनी है। ये काम मत सोचना ये 8th क्लास का काम है, 7th क्लास का काम है, 5th क्लास का काम है, 10th क्लास का काम है। पास होके आगे चले जाओगे, पर जो इंटरनल्स हैं वो कहाँ से लेके आओगे? वो तो हम लोगों के हाथ में है। फाइनल पेपर ही क्लियर कर लोगे, प्रैक्टिकल्स हम लोगों के हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं है। और फ्री की अपनी जो इंटरनल है, अपना फाइल, आपका जो फाइल है वो, आपकी जो असाइनमेंट है वो, उसको खराब मत करो, वो फ्री के नंबर मत गवाओ। जिन लोगों की असाइनमेंट, ठीक है,
आप लोग अगर ऑफलाइन नहीं हो, सामने नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर आपको कुछ कह नहीं सकता या आपको वो डर खतरा अब नहीं रहा कि हाँ भाई टीचर कौन सा सामने है, मैं कौन सा कॉलेज जा रहा हूँ, ये सेमेस्टर ऐसे ही मेरा निकल जाना है। भाई आना कॉलेज ही है। फर्स्ट इमेज इज द लास्ट इमेज। कितनी देर भाग लोगे? एक सेमेस्टर माहौल ऐसा रहेगा, 2 सेमेस्टर माहौल ऐसा रहेगा। आना कंप्यूटर के टीचर्स के पास ही है। फाइनल डिग्री यहीं से लेके जानी है, फाइनल डिप्लोमा यहीं से लेके जाना है, हम लोगों से ही पास होके निकलोगे। तो इसलिए डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, या अपना काम टाइम पे करना स्टार्ट कर दो। जो जो आपको प्रैक्टिकल्स भेजे जाते हैं, rather देन एंड पे डालने की बजाय, जस्ट वेट। हाँ जी बच्चे, मैं आप लोगों को बोल रही थी कि जो भी अपनी असाइनमेंट्स हैं या अपनी फाइल्स हैं वो कंप्लीट करते जाओ साथ साथ में। असाइनमेंट की जो भी आपको डेट दी जाती है, सबमिशन डेट, ठीक है, कोई भी टीचर कोई बेवकूफ नहीं है जो आप लोगों को गिवन और सबमिशन डेट साथ में दे रहा है। इट मीन्स अगर वो आपको 1 हफ्ते का टाइम पीरियड दे रहा है तो उस 1 हफ्ता वो बहुत होता है कॉपी पेस्ट करने के लिए। यू आर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो इतने तो आप लोग हो नहीं कि आप लोग पढ़ पढ़ के वो चीजें कर रहे हो। ठीक है, सीधी सी बात है, कॉपी पेस्ट ही करोगे। हार्डली 2-4 स्टूडेंट्स होंगे, 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे जो एक्चुअल में समझ के कर रहे हैं उस चीज को। और उन एलिमेंट्स का नाम मुझे पता है क्योंकि उनकी फर्स्ट इमेज जो है वो लास्ट इमेज ही रहेगी। ठीक है, बाकी थोड़ा ध्यान दो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा ही दूं। चलो पहले ये किट एक बार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आपके स्टूडेंट्स के नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। ओके, ये हम लोगों के लगे हैं सीई के कनेक्शंस। ठीक है, अब इसमें फिर से वही सेम केस है, वही चीजें हैं गिवन, किट वही की वही है। ठीक है, सिर्फ हुआ क्या, अब यहाँ पर एमिटर को कॉमन लगाया है। मतलब कि जो मेरा बेस है वो मेरा इनपुट है, जो इधर वाले 2 हिस्से हैं, ये वाले 2, ये बेस के हैं, और इधर वाले जो 2 हिस्से हैं वो कलेक्टर के हैं। ठीक है, अब जब इसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब एमिटर का केस डिस्कस किया था, हम लोगों ने बेस का, इधर वाले का करेक्टरिस्टिक्स निकालने हैं इनपुट के। उसके लिए मुझे इधर की जो वोल्टेज है उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट करना पड़ेगा। मैं जस्ट नोब हिला रही हूँ आप लोगों को उधर से व्यू है प्रॉपर्ली। मैम है तो पर थोड़ा ब्लर है। अब अब ठीक है ना, अब ठीक है थोड़ा, है ना, क्योंकि शाइनिंग पड़ रही है आई थिंक सो किसी चीज की। है। यस मैम। जस्ट वेट। जस्ट वेट।
नोड के इनपुट यहाँ पे इनको पार्ट देख सकते हैं। अप्लाई करो अब बेटर, थोड़ा बहुत बेटर है ना? यस मैम। ठीक है, मैंने इधर की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया, इधर वाली ये कलेक्टर की है, मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया एक वैल्यू पे। ठीक है, इधर का जो करंट है उसको मैं मूव कर रही हूँ। ये देखो, मैंने वोल्टेज इंक्रीज की, प्रीवियस स्टार्ट डायग्राम उसके साथ साथ मेरा जो करंट है वो राइज हुआ। उसका इनपुट थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस हर बार में रहेंगी। अब अगर लिंक ऑफ पीटीआर की बात करें, लिंक ऑफ पीटीआर में भी आपको किया था वैल्यू का स्टोर है क्योंकि तो दूसरी पे इसमें स्टोर करके डन, वोल्टेज इंक्रीज की, करंट इंक्रीज हुआ, वैल्यू यहाँ की कांस्टेंट है। दोबारा से एक अलग जगह पे जाके इसको कांस्टेंट कर दिया, फिर उधर से उसको रोटेट किया, उसका करंट उसके सामने आएगा, फिर से इसको एक अलग वैल्यू पे कांस्टेंट कर दिया, फिर से उधर को रोटेट करके उधर की रीडिंग्स ले ली। नेक्स्ट फोर्थ, फिर से इसको कांस्टेंट कर दिया और इधर की रीडिंग्स ले ली। डन। अब दूसरी बार में हम लोगों ने क्या करना है, जो चीज निकाली है दिस वन, आईबी करंट निकाला हुआ, आईबी को मैंने करना है कांस्टेंट। ये देखो, मैंने इसको एम मीटर को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कांस्टेंट कर दिया। ये देखो, इसका करंट राइज हो रहा है दिस वन। ठीक है, ऐसे ही अलग एक वैल्यू पे ठीक है जी, दोनों में सेम केस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ दोनों में क्या किया है, एक चीज कॉमन लगाई है। केस दोनों का वही कहता है, चाहे इधर मैं बेस ले रही हूँ इस वाले हिस्से में, चाहे मैं इस वाले हिस्से में इनपुट में एमिटर ले रही हूँ, निकालना तो मुझे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ही है ना, चाहे वो मुझे आई बी निकालना है, चाहे वो मुझे आई ई निकालना है। प्रोसीजर, मेथड, टेक्निक सेम है। जब इधर का कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने हैं तब इधर की जो वोल्टेज है इसको कांस्टेंट करोगे और इसको रोटेट करोगे तो मेरा करंट मेरे सामने आता जाएगा। जब मैंने इधर की आउटपुट निकालनी है, इधर का करंट निकालना है, मींस कलेक्टर का करंट, तो जो चीज मैंने निकाल ली है दिस वन, उसको कांस्टेंट कर दो, इधर की वोल्टेज में चेंजेस लेके आओ और इधर का जो करंट है ये वाला वो मेरे सामने आता जाएगा। अब तक तो शायद मैंने थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल इतनी बार करवा दी, अब तक तो ये चीजें रट जानी चाहिए मेरे ख्याल में। यस और नो? यस मैम। है ना, अब तक तो शायद ये Yes, ma'am. घोल के पी जाओ इसको, इन पॉइंट्स को, है ना? सही बात है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके डन। ओके, अब मेरे को बताइए कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो इसमें पहला लेक्चर नहीं लगाया और दूसरे लेक्चर में आया? जस्ट मुझे इतना बता दो। सुबल, सुबल ने फर्स्ट लेक्चर नहीं लगाया था? सुबल ने लगाया था। संचित ने? यस मैम, लगाया था। चलो ओके, क्लास एंड करें, बहुत है आज के लिए। यस मैम। चलो ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।
थैंक यू मैम।